Students, बच्चे, as you all know that we are doing your chapter number 13. Now we are on which chapter beta? We are on your chapter number 13, limits and derivatives. Chapter number 13, limits and derivatives. Clear beta? In this chapter, first of all, I would like to tell you about what is limit. Suppose in general as x tends to a and fx tends to L, then L is called limit of the function fx. क्लियर बेटा? अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच करती है तो fx की जो वैल्यू आएगी then that value is called function of fx. Symbolically limit x tends to a, fx is equal to L. क्लियर बच्चा? Let's take an example. Suppose we have hx is equal to x square minus 4 upon x minus 2, x not equal to 2. Is it clear beta? Now here if we will see to the graph of this equation, we will get a picture like x dash, y dash. Suppose this is your point 2, 0 and this is your 0, 2. And we will get a line that passes like this. Is it clear beta? And this is your function of y is equal to h of x. We have two types of limits. Left hand limit अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x tends to a minus
fx is expected value of f at x is equal to a, given the values of f near to x to the left of a. This value is called left hand limit of f at a point. Is it clear, beta? I have told you about limit, then I have told you about left hand limit. Clear, बच्चे? Okay. Now dear, just now we will look at your right hand limit. The second one is your right hand limit. In your right hand limit, beta, limit x tends to a positive, fx is expected value of f at x is equal to a, given the values of f nearer to x to right of a. This value of f at a is called right hand limit. Right hand limit. Clear, beta? Now let me tell you an important thing. You have to make a note of this. That is, if the right and left hand limits coincide, then that common value as the limit of fx at x is equal to a and denoted by limit
x टेंड्स टू a fx। क्लियर बेटा? नाउ बच्चे in your first example, it is given that fx is equal to, in your example 1, fx is given, fx is equal to x plus 10। ठीक है, at x is equal to 5। So what we will do, we will try to frame a table first. Suppose I am framing this table. In this table, here I will take beta x and here I will take fx. If I am taking the value of x is 4.9, my value of fx will come 14.9. If I will take 4.95, I will get value 14.95. If I will take 4.999, my value of this will be 14.99. In the same way, beta, if I am having 4995, but I will get 14.995. If I will take value nearer to just 5, then I will get the value 15.001. If I will take value 15.01, what value I will get? 15.01. If I will take here it will become 5. ठीक है बेटा? And if I will take value 5.1, my this value will come 15.1। ये मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, आपको आता होगा 9th 10th में आपने किया होगा अच्छे से। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू ये रखेंगे तो इसमें ऐड करके fx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिमिट x टेंड्स टू f नेगेटिव ऑफ fx, that is coming 15। ठीक है, देखो, we deduce that fx at 5 should be greater than this and less than this, assuming nothing dramatic happens. So इसका मतलब numbers to the left of 5 is 15. Similarly, if x will approach from right hand side, similarly beta, limit of x tends to f positive of fx, पॉजिटिव की तरफ से ले, then also we are getting value 15. Is it clear? Therefore, what we can say that limit of x tends to 5 negative of fx is equal to limit of x tends to 5 positive of fx, that is limit x tends to 5 fx, that is 50। सिमिलरली आपके एग्जाम्पल 2 में भी ऐसे ही किया है, वैल्यूज निकाली गई हैं कौन से फंक्शन की? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इन योर एग्जाम्पल 3 बेटा द सेम थिंग इज अगेन देयर फॉलोड, fx इज इक्वल टू 3x and you have to find at x equal to 2, and then is your illustration number 4। Same pattern, 5 also same pattern, 6 also same, just that is your
trigonometric function, and in that we have observed that limit of this in your example number 6. बाकी सारे सिमिलर थे, 1 के जैसे थे. 6th में क्या है बेटा, फाइंड, आप इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ साइन x. तो इसकी सॉल्यूशन में लिमिट आपकी क्या आ जाएगी बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, ये लेफ्ट हो गई आपकी, x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई है. दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ fx, दैट इज 1. कैसे 1, कैसे आया 1, अगर हम x की जगह पे पाई बाई 2 लिख दें, देखो साइन पाई बाई 2 क्या वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2 की, मीन्स साइन 90. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया था ना 10th क्लास में, वैल्यू विल बी 1. सेम वे इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 7, and then is your illustration number 8. In your illustration number 8, nothing important is there, we have to just find the value of, in your illustration number 8, limit x tends to 0 of fx, where fx is equal to 1 upon x square. अब देखो, अगर हम x की जगह पे 0 लिख दे बेटा, ठीक है, 0 लिख दे, तो हमारे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हम, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो ये क्या बन गया 1/0, और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी. क्या होता है, इंफिनिटी. क्लियर हुआ बेटा. देखो, एक मैंने आपको ये बताया है, ये आपको लर्न ही करना है, लिमिट ये क्या होती है, और जब आपकी 1/0 आएगा कोई भी फॉर्म, उसकी लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी. क्लियर है बेटा. चलो अब मैं आपके नेक्स्ट पेज पे टर्न होती हूँ. जैसे आपको पता ही आपके दोनों पेज फिल हो चुके हैं. एग्जाम्पल 9 भी आपका सिमिलर फॉर्म का है, 10 भी आपका सिमिलर तरीके का ही है. ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं बेटा, एग्जाम्पल नहीं है आपके, ये इलस्ट्रेशन है जो लिमिट को समझाने के लिए आपको बताए गए हैं. These are like your illustrations. ठीक है, तो इसके बाद let's move on. यहां पर बेटा अब मैं आपको कराऊंगी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. क्या बताऊंगी बच्चे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, टॉपिक नंबर 13.3.1, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. ऑन विच पेज नंबर बच्चे, ऑन योर पेज नंबर 292. अकॉर्डिंग टू दिस, if we are having two functions, then first thing is there, limit of x tends to a. अगर हमारे पास दो फंक्शन है f(x) प्लस g(x), तो बेटा अलग अलग अगर हम निकालेंगे f(x) प्लस यहाँ पे gx. क्लियर है.
ऐसे ही इनका डिफरेंस भी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x, लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g x। प्रोडक्ट भी ऐसे ही होता है बेटा। थर्ड वन प्रोडक्ट वाला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट विल बी सेपरेटली अगर हम निकालें तो, इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। और डिवीजन फॉर्म में अगर है बेटा तब भी ये सेटिस्फाई होगा, लाइक इफ इट टू फंक्शंस आर इन डिवीजन फॉर्म, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे हम। और एक नोट पॉइंट है बच्चे, दैट नोट पॉइंट इज नोट इज देयर in particular as a special केस ऑफ थर्ड वन। ये जो मैंने थर्ड आपको लिखवाया है ना इसका, when g is the constant function, when g is the constant function such that gx is equal to lambda for some real number lambda we have। तो बेटा ये वाली कंडीशन जो है आपकी, लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा f into x, that will be equal to lambda of limit x tends to a f of x। इसमें ये बच्चे आपका इधर आना, ठीक है, ऐसे। इज इट क्लियर बेटा? Then is your topic of limits of polynomials and rational functions. Next topic is your 13.32. This is your note point. In your next point beta, limit of x tends to a x to the power n is equal to a n। Also बच्चे, a function f
is said to be a rational function कब कह सकते हैं किसी भी फंक्शन को रैशनल फंक्शन? इफ f of x is equal to gx upon hx, gx upon hx, where gx and hx are polynomials, such that hx not equal to 0. Clear बच्चे? Now let's look at your main example of your book, that is example number 1. In example number 1 from your page number 294. Where beta? From where I am discussing now? 294. In this बच्चे the first example is saying find the limits तीन पार्ट है इसके. फर्स्ट पार्ट इज सेइंग लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. सेकेंड पार्ट इज सेइंग लिमिट x टेंड्स टू 3 x into x plus 1. And third part is saying beta limit x tends to 1 x cube minus x tends to minus 1. और फंक्शन में है बेटा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एक्स टू दी पावर 10. सॉल्व करती हूं मैं आपका फर्स्ट पार्ट. देखो कितना इजी है ये चैप्टर. देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 करेंगे कैसे? तब से लिमिट कर रहे हैं, लिमिट पढ़ रहे हैं, अब करेंगे कैसे? देखो ये क्वेश्चन है, ये लिमिट निकालनी है. आप इसको लिखोगे लिमिट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. जहां जहां आपके क्वेश्चन में x है वहां आपको 1 पुट करना है. चलिए पुट करते हैं. और जैसे ही आप 1 पुट कर दोगे ना आपका लिमिट का सिंबल हट जाएगा. इसका मतलब आपका लिमिट का सिंबल अब नहीं है 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का क्यूब 1 स्क्वायर 1, ये प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया. आंसर क्या आ गया? 1. ये हमारा आंसर हो गया. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है. तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसे ही कर लेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आपका एग्जाम्पल 2. इसमें 5 पार्ट्स हैं. मैं आपको फोर्थ पार्ट कर देती हूँ. पार्ट 4 लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, उसमें आपको क्या चेक करना है कि एक बार आप चेक करोगे आपका जो क्वेश्चन है वो 0/0 फॉर्म का हम सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस में स्टेप्स करते हैं. कुछ हम स्टेप 1 में पुट करते हैं वैल्यू. पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन. ठीक है. पुट करके देखो, हम पुट कर रहे हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं, कुछ पुट करके देखते हैं.
तो वैल्यू आएगी 2 क्यूब माइनस 2x 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर क्यूब 8 आएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा बेटा, और ये आपका 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये आपका 0/0 आ गया। लेकिन 0/0 को क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है ये आपकी। तो जब ऐसी फॉर्म आ जाती है ना तो उस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। ये हमारा चेक करने का था, हमने रफ साइड में ऐसे चेक करना है। 0/0 अगर आ जाए तो अब हम इसके फैक्टर्स ओपन करेंगे, ठीक है। या तो 0/0 नहीं आता, हमारा कोई आंसर आ जाएगा, और 0/0 अगर आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए लिमिट, ये रफली चेक करते बेटा, 0/0 नहीं आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब लिमिट 0/0 आ जाए तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बन गया? x माइनस 2। और ये नीचे वाले का हम मिडल टर्म स्प्लिट से करके देख लेते क्या आता है। इसका आता है मिडल टर्म स्प्लिट से 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन, x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 बच्चे, और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसका मतलब मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से मेरे ये दो फैक्टर्स आ गए। समझ आया है कुछ? हाँ, फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है। एक बार मैं इसको कॉपी को थोड़ा इधर करती हूँ, जस्ट चेक इट। मैंने यहाँ पे क्या किया? मिडल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर्स कन्वर्ट कर लिए। अब इसको इन फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद बच्चे, चलिए ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, एक्स माइनस 3। यहां से जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा। अब मेरा फंक्शन क्या बच गया? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब मैं इसमें 2 वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या आ गया? 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, दैट इज 4 अपॉन माइनस 1, एंड माई आंसर इज -4। समझ आया बेटा आपको? 0/0 फॉर्म होगी तो पहले हम उसके कॉमन फैक्टर्स को कट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वैल्यू है जो वो निकाल देंगे, ठीक है। फिर बेटा आपके पेज नंबर 296 पे थ्योरम है, थ्योरम 2। वो थ्योरम क्या कहना चाहती है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a, देन वी विल गेट दिस आंसर। अगर हमारा फॉर्म इस फॉर्म का है ना क्वेश्चन, तो आंसर इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसमें देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। अब हम है ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो ये फॉर्म थी, देखो इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको भी मैंने अलग से लिख लिया, x माइनस 1 से कर दिया, और इस वाले को भी मैंने डिवाइड फॉर्म में करके x माइनस 1 से कर दिया। जो मैंने आपको यहाँ पे अलजेब्रा बताए थे डिवाइड में होता है, तो भी हम इसको अलग अलग निकाल सकते। तो इस वाले का क्या आया बेटा? n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। क्या आ गया? n, इसमें n की पावर कितनी है? 15।
तो 15 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। इस क्वेश्चन में आपका n क्या है 15 और a क्या है 1 इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपका आ गया 15 इंटू 1 टू द पावर 14। अब डिवाइड, इस वाले के अंदर आपके n की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू 1। n की वैल्यू यहाँ पे 10 और a की वैल्यू 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 10 इंटू 1 टू द पावर 9। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चे, क्वेश्चन बन गया हमारा 15 अपॉन 10, क्योंकि 1 की वैल्यू तो कुछ भी हो जाए, देन आवर आंसर इज 3/2। तो ये एक नया फॉर्मूला है आपका लिमिट निकालने का। एक तो मैंने आपको सिंपल लिमिट बताया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो और निकाल दो। फिर मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला, अगर 0/0 फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया ये अगर ऐसी फॉर्म में है क्वेश्चन तो आप ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी लिमिट निकाल सकते हो। क्लियर बच्चे? चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, आपके एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लोगे। फिर है आपका लिमिट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक आपकी सैंडविच थ्योरम होती है पेज नंबर 298 पे। कौन सी थ्योरम बेटा? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम वो क्या कहती है आपकी, अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं, लेट f, g, h be real functions such that fx less than gx less than hx for all x in common domain of definition for some real number a, if limit x tends to a, fx is equal to n, limit x tends to a, hx, then limit x tends to a, gx is equal to l। ये आपके बुक में ग्राफिकली भी डिनोट कर रखी है बेटा। एक फंक्शन fx है, फिर दूसरा फंक्शन gx है, फिर तीसरा फंक्शन hx है। तो सबकी जो लिमिट है इस पॉइंट पे शो कर रखी है आपके। इसका मतलब है अगर आपके 2 फंक्शंस की लिमिट सेम है ना, f और h की, तो आपके g की भी सेम आएगी। इज इट क्लियर बेटा? फिर आपका प्रूफ दे रखा है द 2 इंपॉर्टेंट लिमिट्स, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 299 पेज के लास्ट में दे रखी बेटा। इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये आप फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
मतलब ये एंगल और ये सेम दे रखा है, उसमें आपका आंसर 1 आएगा। फिर इसकी दूसरी लिमिट दे रखी है एक तो ये लर्न करनी है आपको, इसको आप यूज करोगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। फिर है बेटा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। अगर आपका 1 माइनस कोस है इधर, ये एंगल और ये सेम है, उसमें आपका आंसर लिमिट का डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, 0। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, देखिए हम आपका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं अभी आपको, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या करने को कहा है आपको, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x। अब देखो इसमें अगर हम अपना जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसको यूज करना चाहोगे बच्चे, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x। ये हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा हम इसको क्या करते हैं, फोर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 4x इंटू साइन 4x अपॉन, क्योंकि मुझे तो यहाँ सेम चाहिए ना, ये 4x है, मुझे यहाँ सेम चाहिए, तो देखो 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने, 4x से और मल्टीप्लाई करने से मेरा ये क्या बन जाएगा, अब नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये 4x तो मैं इसके नीचे यूज कर लेती हूँ, साइन ऑफ 4x अपॉन 4x, फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ। अब मुझे यहाँ पे 2x चाहिए, तो 2x में लिख लेती हूँ और इसको 2 को सेपरेट कर देती हूँ, और ये मेरा साइन 2x आ गया। अब बेटा मुझे ये इस फॉर्म में चाहिए ना, देखो x और x की फॉर्म में, ये तो आ गया मेरा इसकी फॉर्म में, ये थोड़ा उल्टा है तो मैं इसको डिवीजन फॉर्म में लिख देती हूँ, और ये जो 2 मेरा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अभी मैंने आपको कांस्टेंट वाला एक बताया था, अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो इसके बाद बेटा मेरा ये 2 तो आ गया बाहर, बिल्कुल बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सिंपली बन गया मेरा साइन 4x अपॉन 4x, ठीक है, और ये लगा दिया मैंने डिवाइड का साइन, इसको रेसिप्रोकल हो गया हमारा, साइन 2x अपॉन 2x। मैंने मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया, ऐसे ही नहीं किया, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, देखो क्या करते थे छोटी क्लासेस में, 3/2 डिवाइड बाय 1/2 करते थे, तो 3/2 इंटू 2/1 नहीं करते, तो मैंने इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दिया, मतलब ये पीछे वाला उल्टा कर दिया। हम ऐसे से ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे से ऐसे भी जा सकते हैं। अब सिंपली मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले जैसा बन गया, इसका आंसर क्या होता है 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो डायरेक्ट मुझे कुछ पुट नहीं करना, इसका आंसर आ गया 1, और इसका आंसर क्या आ गया डिवाइड में 1, 1 डिवाइड बाय 1 1, तो आंसर मेरा फाइनल आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 2। तो मैंने आपको एक तो ये 2 फॉर्मूलेज बताए हैं, एक आपको सैंडविच थ्योरम बताया है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन से पहले। तो अब आपको बेटा आपके होमवर्क में आज का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कराया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट बेशक ले लीजिए, इसका ले लीजिए और इसका, इनके बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपको कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 13.1।
Clear beta? So today you have to complete exercise 13.1. That's all for your today's class, बच्चे. Thank you.